Everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today I am going to deliver a lecture on Unit 2 of Transportation Engineering subject. The name is Highway Transportation, lecture number 27, Highway Lighting. So दोस्तों आज लेक्चर नंबर 27 हाईवे लाइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हाईवे ड्रेनेज अर्बोरिकल्चर और लाइटिंग है जो हमारा चैप्टर, उसमें से हमने हाईवे ड्रेनेज और अर्बोरिकल्चर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 27 हाईवे लाइटिंग। सो दोस्तों सबसे पहले कि हमने कहीं ना कहीं से हम जब हाईवे पे जा रहे होते हैं तो जब इस तरह का लाइटिंग पैटर्न हमने हर जगह पे, हर हाईवे पे, हर स्ट्रीट पे देखा है, ठीक है। तो ये जो लाइटिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस है, उसकी नीड है, ठीक है। तो नाइट विजिबिलिटी के ड्यूरेशन और बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। उसके साथ साथ उसका जो पैटर्न है वो प्रॉपर वे में डिजाइन किया हुआ होता है। उसका जो स्पेसिंग है, उसका जो हाइट है, उसका जो माउंटिंग हाइट है, सब चीजें, तो वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो उसका डिजाइन है जो हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हमारे इस यूनिट के जो इस चैप्टर का जो लेक्चर है हाईवे लाइटिंग, उसमें बेसिकली जो हमारा कंटेंट रहने वाला है वो है इम्पोर्टेंस, डिजाइन फैक्टर एंड लाइटिंग लेआउट। सो दे आर थ्री मेजर content of this subject is importance, design factor and lighting layout. So let's start. The first point of this subject is importance of highway lighting. So basically what is the need for highway lighting or street lighting? So the main purpose of street lighting is to enable the road users to see the accurately and easily the carriageway and the immediate surrounding in the darkness. First main purpose of street lighting or highway lighting is to enable the road users to see the accurately and easily the carriageway। जो हमारा carriageway है हाईवे का, वो हम accurately और easily जो उसकी जो visibility criteria उसके हिसाब से हम देख सकें और उसके सराउंडिंग इन डार्कनेस, कोई भी डार्कनेस में भी हम हमारा जो हाईवे का जो प्रॉपर कैरिजवे है, जितना मीटर का उसका विड्थ है रोडवे का, वो हम प्रॉपरली देख सके। तो वो उसका मेन पर्पज होता है हाईवे लाइटिंग का, बेसिकली इन नाइट ड्यूरेशन। So second need is majority of the road accident are caused in the night and the poor lighting in the is the main cause। Basically जो मेजर एक्सीडेंट हो रहे हैं वो लाइटिंग, पुअर लाइटिंग के हिसाब से हो रहे हैं, इवन नाइट ड्यूरेशन में। सो उसके लिए इसका इम्पोर्टेंस है हाईवे लाइटिंग का, तो वो एक्सीडेंट रेट कम करेगा। Third one is improve visibility at night by means of artificial lighting, restraint or dividing and ensure comfort। Visibility improve होता है और comfort भी improve होता है due to lighting। And last one is the drivers feel more confident in the driving under proper street lighting। So हम proper, हमको कैरिजवे विजिबल है तो हम easily और confidently drive कर सकते हैं without any fear। Then next one is with the better lighting, the speed of the traffic generally improve and traffic flow condition improve। बेटर लाइटिंग की वजह से ट्रैफिक का फ्लो कंडीशन भी इम्प्रूव हो रहा है। Then highway lighting is particularly more important at intersection, bridge side, level crossing, and place where there is a restriction of traffic movement। So this is the one of the important need of highway lighting is particularly more important at intersection, bridge side, level crossing है, a place where the restriction of traffic movement। And then on urban roads where the density of the population is high, road lighting has other advantages like feeling of security and protection। So this is also need of highway lighting। So we can easily say that these are all the need of highway lighting। So अगर सीटीयू एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आता है कि नीड फॉर हाईवे लाइटिंग एक्सप्लेन करो, तो हम यहाँ से समझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट रहेगा बेनिफिट ऑफ हाईवे लाइटिंग या तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे लाइटिंग। जो हमारी नीड है वो वन टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट भी
इंडिकेट करता है वो जो हमारे जितने भी पॉइंट है। यहाँ पे बेनिफिट की बात करें, पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस क्या है। So first one is that due to proper street lighting or highway lighting, the police can do better patrol during night and their job becomes easier and more manageable. So first one is due to proper street lighting, the police can do better patrolling during night. So the job becomes easier. जो पुलिस के लिए जॉब है वो मैनेजेबल और easier हो जाएगी अगर स्ट्रीट लाइटिंग और हाईवे लाइटिंग प्रॉपर हुआ तो। Second one is increase in a business in a city or downtown area as a during night which would otherwise have been totally desert. कोई ऐसा एरिया कि ड्यू टू नाइट विजन वो प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रहा है, तो ऐसे एरियाज में हम अपना जो डाउनटाउन एरिया है जहाँ पे नाइट ड्यूरिंग नाइट विजन में बहुत सी डिफिकल्टी रहती है, तो वहाँ पे हम अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं ड्यू टू स्ट्रीट लाइटिंग और हेवी लाइटिंग। So the architect and town planners have found the lighting to be a major source for a beautification of their project. And then due to good street lighting, there is a considerable reduction in the accident rate during night. And fifth one is the illegal action and the antisocial activities on the road are certainly discouraged by improve lighting techniques. So this is the illegal action, some and antisocial activities on the road, but we provide improve lighting. So through lighting हम उसको भी हम improve कर सकते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि ये जो एक्टिविटी और illegal action है उसको हम कम कर सकते हैं। And last one is it is gives a pleasant atmosphere during night. अगर प्रॉपर विजिबिलिटी रही तो जो हमारा ड्यूरिंग नाइट विजन है वो थोड़ा प्लेजेंट एटमोसफियर रहेगा। सो यहाँ पे 6 बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं कि हाईवे लाइटिंग है तो इसके ये सब इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे यार ये 5 क्या से एज अ बेनिफिट और एज अ इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे लाइटिंग हम कोई भी एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो कंटेंट के हिसाब से हमारा जो पहला पॉइंट था इम्पोर्टेंस या तो नीड और हाईवे लाइटिंग वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सेकंड वन इज द डिजाइन फैक्टर। तो कौन कौन से डिजाइन फैक्टर है जो हाईवे लाइटिंग को अफेक्ट करेंगे। सो डिजाइन फैक्टर फॉर हाईवे लाइटिंग और स्ट्रीट लाइटिंग क्या है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। तो उनमें से पहला है कॉन्ट्रास्ट, सेकंड वन इज ग्लेयर, थर्ड वन इज लेंथ, fourth is a luminous distribution of light, fifth is a lateral placement of lighting poles, sixth one is height and overhang of mounting, seven is a spacing of lighting unit, eight is a lighting layer. So these are the 8 list of design factor for highway lighting. So we can say that and last let's start first explanation of design factor. So first one is the design factor for highway lighting. So various factors to be considered in the design of highway lighting are, उनमें से जो है पहला वो है कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट के बारे में हम डिस्कस करें तो when the brightness of the object is less than that of the background, so that is when the object appear darker than the road surface, and discriminate is principally by silhouette. So basically जो कॉन्ट्रास्ट है हम सबको पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड डार्क है, तो इस हिसाब से हमारा जो बैकग्राउंड है और ऑब्जेक्ट है उसकी जो विजिबिलिटी है, ब्राइटनेस है, उसके हिसाब से हम उसको हम कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हुआ कि जब when the object is appear darker than the road surface, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है या तो रोड यूजर है, वो डार्कर दिखाई दे रहा है when the object is appear darker than the road surface। तो यहाँ पे सिलोएट जो प्रिंसिपल इफेक्ट है कॉन्ट्रास्ट वाली वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड वन इज अ ग्लेयर। So glare is the distributing influence when viewing a difficult visual task
under low brightness condition is known as glare. So there are two types of glare, visibility glare and discomfort glare. यहाँ पे हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि कहीं पे भी हम ऐसा हमने बहुत बार ड्यूरिंग नाइट विजन में और ट्रैफिक में देखा है। तो इस हिसाब से जो हमको इमेज इफेक्ट देखने को मिलती है वो ग्लेयर है। तो दो दो टाइप से बेसिकली ग्लेयर के, एक है डिसेबिलिटी और दूसरा है डिस्कम्फर्ट। तो इन दोनों टाइप्स के ग्लेयर हमको बेसिकली देखने को मिलते हैं। सो ये जो डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस है, कोई भी व्यूइंग में अब डिफिकल्टी होती है विजुअल टास्क देखने में लो ब्राइटनेस कंडीशन में, उसको हम ग्लेयर बोलते हैं। तो इस हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर इज अ लैम्प। सो बेसिकली जो लैम्प कॉमनली यूज होते हैं हैवी लाइटिंग में, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैम्प हम देखते हैं। तो उसमें टंगस्टन फिलामेंट के लैम्प देखते हैं, फिर फ्लोरेसेंट लैम्प देखते हैं, सोडियम वेपर लैम्प का भी यूज होता है और मर्क्यूरी वेपर लैम्प का भी यूज होता है। तो लैम्प भी अफेक्ट करता है क्योंकि लैम्प की जो इंटेंसिटी होती है और ल्यूमिनस पावर होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है लाइटिंग पे। उसके बाद है luminar distribution of light. So to have the best utility of the luminar or source of the light, it is necessary to have a proper distribution of light. कि जो भी हमारा ल्यूमिनर या तो सोर्स है लाइट का, उसकी बेस्ट यूटिलिटी क्या है कि हम वो जो सोर्स है ल्यूमिनर है उसका हम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके जहाँ पे हम आपको carriage way visible करना है। So it should be a aim to achieve a following purpose. Like it should cover the pavement between the curves। जो पेमेंट है कर्व्स के बीच में उसको कवर होना चाहिए जो सोर्स है वो उसके थ्रू, कि वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए पेमेंट के ऊपर। दूसरा है इट शुड मेक अ प्रोमिनेंट ट्रैफिक साइन एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। सो जो भी ऑब्जेक्ट है रोड पे, या तो डाइवर्जन बोर्ड है या तो कोई भी सिग्नल है या तो साइन है, तो वहाँ पे भी लाइटिंग है वो प्रोमिनेंट और प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो लाइटिंग का ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड वन इज इट शुड प्रोड्यूस अ मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ पेमेंट ब्राइटनेस। So there are three or four types of purpose which are achieved for a luminar distribution of source lighting. Like it should cover the pavement curve, it should make a prominent traffic sign and object on the road, or it should produce a maximum uniformity of the pavement brightness. So this is the 4 point of design factor which is luminar distribution of light. Then fifth one is the lateral placement of the lighting pole। तो जो लाइटिंग पॉल्स है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो जो लाइटिंग पॉल्स है, तो लाइटिंग पॉल्स बेसिकली इसका अरेंजमेंट किस हिसाब से होना चाहिए। तो द लाइटिंग पोल शुड नॉट बी इंस्टॉल वेरी क्लोज टू द पेमेंट एज। पेमेंट एज से बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन दैट केस द कैपेसिटी ऑफ द रोडवे इज डिक्रीज एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक इज ऑब्स्ट्रक्टेड। सो अगर रोडवे की कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो हमारा ट्रैफिक है वो ये जो लाइटिंग पॉल है उसका ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रीली मूव नहीं कर सकेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा लाइटिंग पॉल्स है उसका जो लेटरल प्लेसमेंट है वो ठीक होना चाहिए। सो इसके लिए आईआरसी ने प्रॉपर गाइडलाइन दिया हुआ है। सो आईआरसी हैज स्पेसिफाइड फॉर फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस फॉर अ लाइटिंग पॉल्स, कि जो लाइटिंग पॉल्स है उसमें हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होना चाहिए। सो बेसिकली फॉर अ रोड विथ राइज कर्व, यहाँ पे हम अर्बन रोड पे जो हम फुटपाथ देखते हैं तो वहाँ पे जो कर्व्स होते हैं वो कुछ सेंटीमीटर तक राइज होते हैं, या तो 80 या 120 सेंटीमीटर तक उसका राइज पोर्शन होता है। सो वहाँ पर जो मिनिमम 0.3 मीटर एंड डिजायरेबल 0.6 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द राइज कर्व जो हमारा प्लेसमेंट होना चाहिए लाइटिंग पोल्स का, वो उससे बेसिकली 0.3 मीटर या 0.6 मीटर होना चाहिए। ठीक, सो मिनिमम 0.3 मीटर प्लेसमेंट होना चाहिए लाइटिंग पोल्स का। दूसरा है कि फॉर द रोड विदाउट राइज कर्व, अगर राइज कर्व नहीं है तो मिनिमम 1.5 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द कैरेज वे और सब्जेक्ट टू
minimum 5 meter from the center line of the carriage. So basically जो lighting poles जहाँ से start हो रहा है, जहाँ से for example हाईवे है, ठीक है, तो हाईवे का जो कैरिज वे है उसका जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से हम पॉइंट का काउंटिंग करें तो 5 मीटर दूर होना चाहिए, या तो जो हाईवे की कैरिज वे की एज है वहाँ से 1.5 मीटर दूर होना चाहिए। कौन सी कंडीशन में? रूरल हाईवे की कंडीशन में। अगर तो वहाँ पे अर्बन रोड है तो उसकी जो लेंथ है वो कैरिज वे से जो हाईवे का राइज कर्व है उसकी जो एज है वहाँ से 0.3 मीटर दूर उसका प्लेसमेंट रहना चाहिए। तो यह है प्लेसमेंट फॉर अ लाइटिंग पोल्स जो फिफ्थ फैक्टर है। उसके बाद बात करें तो हेड एंड ओवरहैंग माउंटिंग। तो बेसिकली जो ये जो माउंटिंग जिसे हम बोलते हैं कि ये जो लाइटिंग पोल है वहाँ से ये जो लाइट यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है तो इस पोर्शन को हम माउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो माउंटिंग है वहाँ से लेके यहाँ पे जो हाईवे है तो वहाँ तक की ये जो हेड है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो भी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन है। तो इसको पहले हम एक्सप्लेन करें तो वो क्या चीज़ है। तो बेसिकली द ग्लेयर ऑन द आइज फ्रॉम द माउंटेन लाइट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द हाइट ऑफ माउंटेन, कि जैसे जैसे जो इसकी हाइट है वो इंक्रीज होगी उसके हिसाब से हमारा जो आइज में जो ग्लेयर है वो डिक्रीज होगा। तो वो ग्लेयर अगर हाइट कम है इसकी तो यहाँ पे ग्लेयर ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा ग्लेयर की वजह से एक्सीडेंट रेट बढ़ जाएंगे। तो ये जो हाइट है वो जो ग्लेयर है उसके हिसाब से कुछ मीटर तक फिक्स है, ठीक है। So basically the height of mounting usually mounting height range from 6 to 10 मीटर। तो बेसिकली ये हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 से 10 मीटर तक होनी। And then overhang on the lighting poles would keep the poles away from the pavement edge, but still allow the lamp to be held above the curb or toward the pavement। So इस हिसाब से जो हमारा ओवरहैंग है वो बेसिकली कंपलसरी जो हमारा केज है उसकी साइड उसका फेस रहना चाहिए उसके हिसाब से जो, और जो कर्व है वो प्रॉपरली कर्व को भी प्रॉपरली वहाँ पे लाइटिंग पहुँचे उस हिसाब से वो उसकी डिजाइन होनी चाहिए कि पेमेंट एज से लेके फुटपाथ है वहाँ तक उसका प्रॉपर लाइटिंग है। तो इस हिसाब से उसका डिजाइन होना चाहिए। तो हेड और माउंटिंग हेड है वो भी डिजाइन फैक्टर है हाईवे लाइटिंग के लिए। एंड देन स्पेसिंग ऑफ लाइटिंग। सो बेसिकली जो लाइटिंग यूनिट है तो डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग यूनिट है तो उन दोनों के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए। यहाँ पे ये पॉल है तो दूसरा पॉल है तो ये जो पॉल है दो पॉल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये पॉल है और उस जिगजैग पैटर्न में पॉल है तो उसको हम किस हिसाब से ये सब यूनिट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्पेसिंग ऑफ लाइटिंग यूनिट between the spacing between the lamp on a straight road is about 3 to 5 meter times 3 to 5 times the mounting height। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फॉल हाइट है जो माउंटेन से लेकर फॉल हाइट है उसकी जो हाइट है उससे 3 या 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए ये डिस्टेंस। अगर यहाँ पे मेरा डिस्टेंस 6 मीटर का यहाँ पे मेरा हाइट है तो ये जो डिस्टेंस है उसका 3 टाइम्स यानी 18 मीटर जितना होना चाहिए। अगर ये 10 मीटर है तो यहाँ पे जो हाइट है वो कितना होना चाहिए उसका 3 टाइम्स यानी 30 मीटर जितना होना चाहिए। तो इस हिसाब से स्पेसिंग को हम कंसिडर करेंगे। और साथ पर स्पेसिंग बिटवीन लैम्प इज क्लोजर फॉर द बेटर विजिबिलिटी। अगर यहाँ पे कोई जगह पे हाईवे पर कर्व्स है हाईवे पर, ठीक है, तो साथ कर्व्स पे ये जो डिस्टेंस है वो विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो स्पेसिंग ऑफ लाइटिंग यूनिट उस हिसाब से होना चाहिए। देन बात करें तो हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारे कंटेंट में डिजाइन हाईवे लाइटिंग से वो है लाइटिंग लेआउट। तो लाइटिंग के जो लेआउट है वो किस हिसाब से होना चाहिए तो वो वन ऑफ द फैक्टर भी है जो हमारा डिजाइन फैक्टर है वो भी है। सो बेसिकली लाइटिंग लेआउट वेरियस टाइप ऑफ लाइटिंग layout adopted for a lighting poles on the street or highway are single side lighting, roadside lighting, opposite roadside lighting staggered and central lighting। तो बेसिकली ये जो 4 टाइप्स है उस हिसाब से हम हाईवे लाइटिंग को लाइटिंग लेआउट को क्लासिफाई करेंगे। सो जो सिंगल टाइप्स लाइटिंग है उसमें बेसिकली क्या है लाइटिंग लेआउट में सिंगल साइड लाइटिंग
तो ये जो हमारा रोडवे है उसमें एक ही साइड लाइटिंग पोल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि ये एक ही साइड लाइटिंग है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है अर्बन रोड में, उसके हिसाब से ये जो लाइटिंग है उसकी रिक्वायरमेंट एक ही साइड है। तो उसको हम इकोनॉमिकली, बेसिकली जो नैरो रोड होते हैं तो वहाँ पे अगर हम सिंगल साइड लाइटिंग रखें तो वो इकोनॉमिकली रहेगा। तो उसके हिसाब से इसको हम सिंगल साइड लाइटिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेआउट है वो है सिंगल साइड लाइटिंग। सेकंड लेआउट है वो है बोथ साइड लाइटिंग, कि अगर ये जो रोडवे है उसका वो नैरो नहीं है उसका और यहाँ पे लेंथ ज्यादा है, तो हम जो रोडवे है उसमें दोनों साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे पोल है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेकंड पोल रखेंगे। ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रोडवे को बोथ साइड लाइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड वन इज बोथ साइड लाइटिंग इन अ स्टैगर्ड पैटर्न। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर रोडवे है, जैसे हमने पिछले बोथ साइड लाइटिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है, इस हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे स्टैगर्ड पैटर्न में या तो जिगजैग पैटर्न में हम लाइटिंग पॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैंने ग्राफिक इमेज दिया हुआ है, ये सिंगल साइड लाइटिंग। यहाँ पे ये जो बी है वो ये स्टैगर टाइप लाइटिंग है। यहाँ पे जो सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है बोथ साइड। और जो फोर्थ टाइप है यहाँ पे वो है सेंट्रल लाइटिंग। सेंट्रल लाइटिंग यानी कोई भी जो मीडियन है हाईवे का, ठीक है, वहाँ पे मैं ना जो माउंटिंग है वो दोनों फेस है वो दोनों कैरिज डायरेक्शन में रहेगा। इस हिसाब से ये जो मैंने स्कीमेटिक डायग्राम दिया है वो है सेंटर लाइटिंग। तो इस हिसाब से हम सेंटर लाइटिंग को भी सेट कर सकते हो और डी और ई पैटर्न में आप सेंटर लाइटिंग देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली लाइटिंग लेआउट इन चार टाइप में है, वो है सिंगल साइड लाइटिंग, बोथ साइड लाइटिंग विद ऑपोजिट, बोथ साइड लाइटिंग में स्टैगर्ड एंड सेंटर लाइटिंग। तो दोस्तों हमारा आज का जो हाईवे लाइटिंग का लेक्चर है, जो हमारा कंटेंट था उसके हिसाब से हमारा इम्पोर्टेंस, डिजाइन फैक्टर और लाइटिंग लेआउट के बारे में हमने आज डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो हाईवे लाइटिंग वाला यूनिट है वो हाईवे लाइटिंग वाला जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे यूनिट 2 हाईवे ट्रांसपोर्टेशन का जो लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 6 है हाईवे ड्रेनेज arboriculture एंड लाइटिंग, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे लेक्चर नंबर 28 में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे हाईवे ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।